Greetings to all dear friends. Welcome. We welcome you to another episode of 2024 Viksit Bharat Ki Or. As you know, we have initiated this series on 25th November 2023 to, to share awareness about various policies, plans, and schemes which are implemented by central government over the last 9.5 years. We have had discussions on Bharat emerging on global platform, social welfare schemes, agricultural reforms and its impact on peasantry. There are many more subjects queued up for discussion on this platform, like education, women empowerment, infrastructure, urbanization, youth, sports, skill development, tourism, economy. Today, our topic of discussion is Viksit Bharat and health infrastructure. There are many schemes that are running in the field of healthcare. These schemes are casting a very positive impact on the life of day-to-day life of common Indians. So, to shed extensive light upon this subject, Viksit Bharat and health infrastructure, we have two eminent speakers, Professor Suryakant ji from King George Medical University, Lucknow, and Professor Rana Pratap Singh ji from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Along with, we have a beneficiary of healthcare schemes, Dheeraj Kumar Singh from Banaras Hindu University. मित्रों, संस्कृत में एक स्वास्थ्य को लेकर, सबकी कुशलता को लेकर एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। न त्वहम काम्ये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामर्ति नाशना। अर्थात इसका अर्थ है कि मुझे दिव्य भोग, स्वर्ण सुख और राज सुख की कामना नहीं है। हे ईश्वर, आधि व्याधि से रहित, से मुक्त हमारे लोग कुशल और स्वस्थ हुए, यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही शुभ कामना है। इसी कामना के साथ नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अपर्णा वर्मा to introduce our first speaker, Professor Suryakant ji from KGMU. Dr. Suryakant, MBBS, MD, Gold Medalist, BSc, Honoris Causa, Professor, and Head of the Department of Respiratory Medicine at King George Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow, was recognized among the top 2% scientists globally by Stanford University, California, USA in 2022. Prime Minister Shri Narendra Modi ji released 100 books in Hindi on the third anniversary of the new education policy on July 2019, 2023. And two of these books were authored by Dr. Suryakant ji. He holds the titles of Honorary Professor at IMA, IMA CGP, and IMA AMS, and has received the prestigious BSc Honoris Causa from Himvati Nandan Bahuguna Medical Education University, Uttarakhand. Additionally, he serves as the chairperson of North Zone Task Force for the National TB Elimination Program in India and holds positions as a member of the governing body at AIIMS Patna, the Board of Management at Rajasthan University of Health Sciences, and as a past Executive Council member at UPUMS in Saifai, Etawah, and Lucknow University. Dr. Suryakant ji has an illustrious history of leadership roles, having served as
past president for various esteemed organizations, including Indian Chest Society, National College of Chest Physicians, Indian College of Allergy, Asthma, and Applied Immunology, and the Medical Science section of Indian Science Congress Association. Moreover, he held positions as the past Secretary General of the Indian Society Against Smoking and served as the past National Vice Chairman of IMA AMS. He has been acknowledged as a health icon in several media publications such as India Today's Coffee Table Book in 2022, Amar Ujala in 2023, and Outlook in 2023. सर, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने ऐसा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। अच्छा, ये बताइए, मुझे हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है या मिक्स बोलना है? सर, आप हिंदी में बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, In बहुत fact, अच्छा। I had to नहीं, मेरा maintain the bilingual nature of this program. That is why I started it in Hindi. नहीं, In नहीं, बहुत English. अच्छा। Otherwise, Hindi is preferable. मैं खुद ही हिंदी में पसंद करता हूँ। एक्चुअली Yes, मेरा परिचय अंग्रेजी में चल रहा था, तो मैंने कहा लाओ क्लियर कर लेता हूँ। sir, हिंदी में प्लीज। जी जी। तो मैं चूंकि एक चिकित्सक हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट यानी लंग की मेडिसिन का विभागाध्यक्ष हूँ, और मैं बात करूंगा भारत में जो बदलता हुआ चिकित्सा परिवेश है उसके बारे में। तो मैं 2-3 आयामों पर बात करूंगा। एक तो ये कि सबसे ज्यादा हेल्थ में लोगों को अट्रैक्ट किया कोविड के दौरान। 2020 में जब हम कोविड से जूझ रहे थे, पूरी दुनिया रादर जूझ रही थी, पैंडेमिक हो रहा था, तो दुनिया के जो हेल्थ एक्सपर्ट थे, WHO से लेकर और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी, उन्होंने कहा कि इंडिया के पास तो अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है और इंडिया इस कोविड पैंडेमिक को कोप अप नहीं कर पाएगा, ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। ये पूनम जी, मैं आपको बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट की टिप्पणी थी हमारे 2020 में और 21 में भी। और जब 21 में सेकेंड वेव आई, जो कि बहुत भयानक थी, उसकी वजह से पूरे देश दुनिया में, और चाहे वो जो इंटरनेशनल मीडिया रहा हो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स हो, बहुत सारे ऐसे उन्होंने एडिटोरियल और जो लिखे, वो सब यही इंगित कर रहे थे कि इंडिया अब कोविड से लड़ नहीं पाएगा, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। और ये बात सही थी कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के कंपैरिजन में बहुत नीचे थे। और नीचे इसलिए थे क्योंकि हमारा हेल्थ आजादी के 60-70 साल तक हमारी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रही। आपको जान के सबको ताज्जुब होगा कि जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में बना है, ये 1952 में पहला एम्स बना, और जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, दूसरा एम्स इस देश में नहीं बना। अटल जी ने, जब सुषमा जी स्वास्थ्य मंत्री थी, उस समय 2004 में 6 नए एम्स की आधारशिला रखी। और आज मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो 60 साल तक हमारे देश में सिर्फ हेल्थ का अपेक्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन एम्स एक था, आज 23 एम्स काम कर रहे हैं, और ये हो पाया है 10 साल में इस भारत की नई गतिमान सरकार के कारण। एक छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूशन का। अब मैं बात करूंगा दूसरी, कोविड के सामने जो समस्या थी। कोविड के सामने 3 चीजों की जरूरत पड़ रही थी हमारे कोविड मैनेजमेंट में। उत्तर प्रदेश का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना, उसका मैं एक्सपर्ट था। कोविड उत्तर प्रदेश में रिव्यू, पूरे 58 अस्पताल थे जिनके अंदर आईसीयू था, उसका मैं वर्चुअल राउंड रोज लेता था, उसका भी इंचार्ज था। 1100 बेड का कोविड का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड अस्पताल बना था, मैं उसका भी इंचार्ज था सेकेंड वेव में। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में, किसी भी जगह जहां पर कोविड की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, मॉर्बिडिटी या मोर्टलिटी, तो डॉक्टर सूर्यकांत को भेजा जाता था एज ए एक्सपर्ट फॉर रिव्यू। और मैं आगरा, कानपुर, मेरठ, और हद तो तब हो गई जब वाराणसी माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मुझे भेजा गया सेकेंड वेव के दौरान, और फिर वहां रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए। तो इस दौरान 3 चीजों की बड़ी डिमांड थी। एक, ऑक्सीजन, दूसरा आपका N95 मास्क, और तीसरा वेंटिलेटर्स। सब तीनों की चर्चा होती थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये क्राइसिस चल रही थी ऑक्सीजन की,
तो बहुत 4-5 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बनाती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस मशीन को कहते हैं, एक छोटी बाल्टी के आधा बाल्टी के बराबर एक ऊंची मशीन होती है, और उसको जब हम प्लग स्विच में बिजली के बोर्ड में लगाते हैं और ऑन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके वो ऑक्सीजन तैयार करता है। क्योंकि हम जानते हैं वातावरण में जो हम सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। तो नॉर्मल सामान्य सांस जो हमारे अंदर जाती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसको कंसंट्रेट कर लिया जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन कहलाती है। एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक समय ऐसा आया एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे देश में उपलब्ध नहीं था। उस समय सोचिए हमने एनजीओ से संपर्क करके और 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दिलवाए। मैं धन्यवाद देता हूं उस संस्था को जिन्होंने ये इतना बड़ा पुण्य का काम किया। उस समय ये प्रश्न विपक्षी दलों से लेके सबने, मीडिया ने सबने उठाया कि हमारा देश सो रहा था, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उसी दौरान 1 साल के अंदर 500 नए ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में लगे। आप सोचिए कि अब पूरे देश में इतने हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हैं कि हमारे पास कोविड जैसे 1-2 पेंडेमिक एक साथ आ जाए साल भर के लिए तो भी हमारे देश में ऑक्सीजन रिजर्व इतना है कि कमी नहीं पड़ेगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग हमने की है कोविड के तुरंत बाद। N95 मास्क, एक मास्क हमारे देश में नहीं बनता था। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इस दुनिया में N95 मास्क के लिए, जो हम डॉक्टर लोग लगाते थे कोविड के दौरान। जो वेंटिलेटर की बात करें तो एक भी वेंटिलेटर हमारे देश में नहीं बनता था, लेकिन 2021 आते आते हमारे पास वेंटिलेटर भी बनना लगा। अब बात आई जब 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च किया। उसके पहले लोग क्या कह रहे थे? लोग कह रहे थे भारत और वैक्सीन सवाल ही नहीं उठता, कोविड की वैक्सीन भारत बना लेगा, सवाल ही नहीं बैठता। अब आप सोचिए हमारी कोविड वैक्सीनेशन 1 नहीं 2 नहीं, हमने 5 सरकारी सिस्टम ने ही 5 वैक्सीन बनाई, और हम दुनिया में पहले हैं जिन्होंने डीएनए वैक्सीन बनाई। सब आरएनए बना रहे थे, हमने डीएनए वैक्सीन भी बनाई। हमने इंट्रानेजल वैक्सीन, खाली नाक में स्प्रे करिए वैक्सीन बन गई, हो गई। तो इंट्रानेजल वैक्सीन भी हमने बनाई। 2 चीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत ने बनाई, दुनिया में किसी ने नहीं बना पाई। और आपको बता दूं कि मैं तो वैक्सीन को लेके बहुत वो था, फोबिया था, वैक्सीन फोबिया था। किसी ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊं। किसी ने कहा ये वैक्सीन है, ये तो ये कर देगी। किसी ने कहा ये नपुंसक बना देगी लोगों को। किसी ने कहा ये कर देगी, वो कर देगी। बहुत सारा दुष्प्रचार चल रहा था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उस समय बाय द वे हमारे जो बड़े पदाधिकारी थे, कुलपति से लेके और दूसरे, वो सब कोविड पॉजिटिव थे। तो ये हुआ कि 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जब वैक्सीन लॉन्च करेंगे तो पहला कौन होगा जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वैक्सीन लगवाएगा। तो मैंने कहा मैं लगवाऊंगा। और नेशनल हेल्थ मिशन ने फिर मुझे इस्तेमाल कहा आपने पहली वैक्सीन लगाई, आप बहुत वीडियो बनाइए, कोविड वैक्सीनेशन की एडवोकेसी करिए, और मुझे कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन का जो हमने लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया है, दुनिया उसका लोहा मान गई है। अंतरराष्ट्रीय 3 पत्रकारों ने तो मेरा इंटरव्यू लिया कि आपने इतना अच्छा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कोविड कंट्रोल करके दिखाया, पूरे दुनिया में एक नजीर बना कि इतनी कम इंसिडेंस के साथ, इतने कम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के साथ उत्तर प्रदेश ने कैसे कराया। और वो एज ए एक्सपर्ट हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, तो इतना सस्ता ट्रीटमेंट था। तो मैं कहता भैया 4 दवाएं 5 दिन खाओ, मात्र 50 रुपए का खर्चा है, अगर सरकारी फ्री ना मिल पाए तो भी, और कोविड ठीक हो जाएगा। तो दुनिया ने हंसी उड़ाई, इतने सस्ते कोविड कैसे डॉक्टर सूर्यकांत आप ठीक कर देंगे। तो हंसी उड़ती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश ने वो करके दिखाया जो कई बार हमारे देश के दूसरे प्रांतों ने भी नहीं करके दिखाया, और दुनिया में तो सवाल ही नहीं था, हंसी उड़ाते थे लोग। हमने उस सस्ती दवा पर एक व्हाइट पेपर लिखा, दुनिया में पहला व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन पर। ये हम 19 लेखक हैं इस देश में, जिसमें मैंने पहल की इसको लिखवाने के लिए। और वो जब छपा तो इतना ज्यादा देखा गया कि WHO को मजबूरी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ा, मोस्ट साइटेड एंड मोस्ट रीडेबल व्हाइट पेपर इन द वर्ल्ड ऑफ आइवरमेक्टिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो ये हमारी क्षमता है, हम क्षमता थी हमारे पास, लेकिन प्राथमिकता नहीं थी। इस मोदी और योगी की सरकार ने कहा कि क्षमता हमारे पास है तो हम प्राथमिकता भी तय करेंगे, हम इसको एलोकेट भी करेंगे, निगरानी भी करेंगे और करके भी दिखाएंगे। और कोविड सक्सेस स्टोरी आपको मालूम है, अभी एक वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है उसके ऊपर कि कैसे इतनी जल्दी कोविड की वैक्सीन भारत ने बना दी। और
बहुत सारे लोगों ने दुष्प्रचार किया, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और दुनिया को मानना पड़ा। 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस तो हमने दान में दे दी। हम महावीर कर्ण के वंशज हैं, हम अपने भारत की संस्कृति को नहीं भूलते हैं। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज हमने दान में दे दी, जबकि अमेरिका से और दूसरे डेवलप्ड देशों से उनकी वैक्सीन मांगी, उन्होंने कहा पहले हमारे देश की पूरी हो जाए तब हम किसी को देंगे। हमने ये परवाह नहीं की। हमारे नेतृत्व ने 100 करोड़ वैक्सीन 9 से ज्यादा देशों में दी। अब हम बात करेंगे कि ये तो हुआ जनरल चीजें। अब हम बात करेंगे कि इधर और नया क्या हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में। आप देखिए कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 16 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में सरकार के, जब माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया 2017 में। और आपको मैं बता दूं, ये 16 के 36 हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 16 से 36 मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर में हो चुके हैं। 67 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और पोस्ट को मिला के सबसे हो चुके हैं। देश में इस समय सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं तो उत्तर प्रदेश में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज प्रोग्राम, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट चल रहा था ओडीओपी, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम चलाया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और 14 और नए मेडिकल कॉलेज इसी 2024 में शुरू हो जाएंगे। आप सोचिए कि लगभग 100 का आंकड़ा हम धीरे धीरे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के बहुत जल्दी छूने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हर जिले में एक डायलिसिस मशीन, किडनी के रोगियों के लिए डायलिसिस, मतलब गिने चुने केंद्र, या फिर आप हो जाइए उसमें चले। इसके अतिरिक्त मैं बताता हूं कि ये मेडिसिन अफोर्डेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो और कॉमन मैन की रीच हो। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक अमृत स्टोर खोले। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल एक योजना चलाई, उसके अंदर सब्सिडाइज रेट पे 60% तक सस्ती दवाएं मिल सके, ऐसे अमृत मेडिकल स्टोर पूरे देश में खोले गए, 25,000 से ज्यादा। और इसके अतिरिक्त कैपिंग की गई बड़ी, जैसे स्टेंट हार्ट के मरीजों में पड़ता था या जोड़ों के रिप्लेसमेंट में जो प्रोसेसेस लगती थी, इसके अंदर कहा कि भाई कैपिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते। इसके ऊपर विदेशी कंपनियां सब बनाती थी और उल जलूल पैसे जो है वो चार्ज करती थी, 200 400 500 1000% मुनाफे पर। वो प्रधानमंत्री जी ने कैपिंग कर दी। अब हमारे बड़ी से बड़ी चीजें, चाहे एंजियोप्लास्टी आपको करानी है, हिप रिप्लेसमेंट कराना है या और कोई प्रोसेस लगवानी है, इन सब की कैपिंग हो चुकी है और इजीली अफोर्डेबल आम आदमी के रीच में है। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ लोगों को 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो कि आच्छादित किए गए हैं पीएम जय योजना, यानी जो हमारी एक दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है पीएम जय, जिसको कि हम बड़े पैमाने पर लागू कर रहे हैं। ऐसे 5 लाख तक का प्रति वर्ष आप निःशुल्क इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर सरकारी भी और गैर सरकारी भी सब अस्पताल को पैनल किया गया है। ये दुनिया में इस विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने इसकी तारीफ की है कि ये पीएम जय योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो गरीबों का इलाज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री जी का अलग एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो इससे आच्छादित नहीं हो पाता है आयुष्मान भारत से, उसको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उसको सेवा की जाती है, उसको दवा का इंतजाम या इलाज का इंतजाम किया जाता है। अब मैं बात करूंगा, चूंकि मैं फेफड़े का डॉक्टर हूं, तो मैंने कोविड की बात की, मेडिकल कॉलेजेस की बात। पूरे देश में 160 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 23 एम्स हो गए हैं और अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस की सीटें 1 लाख से ऊपर हो गई हैं, दोगुने से भी ज्यादा। यानी 10 साल के अंदर आप सोचिए कि एमबीबीएस की सीट जो 48-49 हजार हुआ करती थी 2013 तक, वो आज 1,10,000 के करीब हो गई हैं, यानी दुगने से भी ज्यादा एमबीबीएस की सीट बढ़ गई हैं। हम डॉक्टर बनाने की हमारी क्षमता देश की लगातार बढ़ रही है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्पेशलिस्ट जो हैं वो उनकी संख्या भी दोगुनी हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि हम चिकित्सक ज्यादा बना रहे हैं, हम चिकित्सा सुविधा ज्यादा दे रहे हैं, हम दवाएं सस्ता कर रहे हैं, हम गरीबों को निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारा जो शोध का एरिया है उसमें भी बहुत बड़े बड़े। अब बात करेंगे क्या स्किल इंडिया और जो मोदी जी ने नारा दिया था उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ है? जी हाँ, बहुत। आपने देखा 5 स्वदेशी वैक्सीन बनी। इसके अतिरिक्त एक टीबी की जांच हुआ करती थी जिसको हम कहते थे सीबी नेट, अमेरिका की मशीन थी, लाखों की आती थी, बड़ी महंगी पड़ती थी। 2018 में सोचिए
भारत में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी मशीन की तरह और उससे बहुत सस्ती मशीन ट्रू नेट के नाम से बेंगलोर की एक मोल्बियो नाम की कंपनी है, उसके जो आविष्कारक हैं डॉक्टर नैयर साहब, उनका एक दिन मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर सूर्यकांत, मैं उसमें 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ का प्रेसिडेंट था, कहा इस मशीन का मेरे आईसीएमआर उसमें लगी हुई है अप्रूवल के लिए, एक डिस्प्ले मैं लखनऊ में करना चाहता हूं। तो मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी मशीन टीबी की रैपिड डायग्नोसिस के लिए, टीबी जैसी बीमारी की जल्दी जांच हो जाए, उसके लिए भारत में ये शोध के द्वारा मशीन बन गई। और अमेरिकन कंपनी से अब तो भारत सरकार ने कह दिया है कि हमें वो अमेरिकी कंपनी मशीन नहीं चाहिए, अब जो भी टीबी की रैपिड जांच के लिए मशीन खरीदी जाएगी इस देश में, वो इंडिजीनियस कंपनी की ही खरीदी जाएगी। एक और जांच अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जो ब्लड में छोटे से जांच करके और उसका टेस्ट कर लेंगे। अब ये अभी तक 1200 रुपए की जांच होती है, अब ये टेस्ट अभी भारत सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो मात्र 200-250 रुपए, यानी 1/5 कीमत रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे रिसर्चेज, ऐसे ऐसे शोध, क्या इस देश में प्रतिभा पहले नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन उसकी इज्जत नहीं थी, उसका सम्मान नहीं था, उसका सरोकार नहीं था, उसका प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन अब ये सब इस देश में हो रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को वो किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जा रही है। टीबी कंट्रोल एक ऐसा बीमारी, चूंकि मैं टीबी का डॉक्टर हूं और प्रधानमंत्री जी ने पोलियो मुक्त जब भारत हुआ तो उसके बाद जो दूसरी बीमारी प्रधानमंत्री जी ने पकड़ी है वो टीबी की बीमारी पकड़ी है। अब टीबी सब लोग, बहुत कॉमन बीमारी होती है, जिसको हो जाती है उस घर में कैसा कष्ट होता है, अब हम सभी जानते हैं। टीबी को बीमारी को लेके 13 मार्च 2018 को जब दुनिया कह रही थी कि दुनिया से टीबी का अंत करने का लक्ष्य 2030 या 35 रखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2018 को एक एंड दिल्ली टीबी समिट की, जिसमें मैं भी विज्ञान भवन में हुई थी, मैं मौजूद था उस कार्यक्रम में, और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के सामने ये घोषणा कर दी कि भारत 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएगा। बहुत बड़ी उद्घोषणा थी। और मैं चूंकि 9 राज्यों में इस नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का जोनल टास्क फोर्स, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स का चेयरमैन होने नाते काम देखता हूं, आप सबको मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में टीबी मुक्त, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसकी गति इतनी तेज हुई है, उसमें नए नए चीजें आई हैं। और सबसे बड़ा जो इस केवल भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया, वो ये कि टीबी के मरीज की टीबी की जांच फ्री, इलाज फ्री, और साथ में 500 रुपया महीना उसको पोषण भत्ता के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। उसको एक अच्छा खाना पीना, दूध खाए, फल खाए, उसके लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने कहा कि भाई टीबी के रोगियों को आप अडॉप्ट करिए, गोद लीजिए, उनको सोशल सपोर्ट दीजिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दीजिए, इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। और फिर ये भारत सरकार ने योजना अडॉप्ट कर ली, अब इसको नाम निक्षय मित्र दिया गया है। और इस योजना से दुनिया इतनी प्रभावित है कि अभी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, बनारस में हुआ था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मोदी जी वहां मौजूद थे और ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। सौभाग्य से मैं भी उस कार्यक्रम में भी मौजूद था। और उस कार्यक्रम में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, दुनिया की बड़ी टीबी की संस्था है। जब उन्होंने इस योजना के बारे में कहा तो कहा 5 टीबी के मरीज मैं भी भारत के अडॉप्ट करती हूं, उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट, इसका जो भी खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें महीने में एक बार टीबी के मरीज से मिलना होता है, उससे पूछना पड़ता है कोई आपके साथ सामाजिक भेदभाव तो नहीं हो रहा है। खासतौर महिलाओं को होता है, लोग डिवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मायके भेज देते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको जो है, बच्चे उनके साथ खाना नहीं खाते हैं, खेलते नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो तो ना हो, प्लस उनके न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी एक पोषण पोटली दी जाती है निक्षय मित्र प्रोग्राम में। तो दुनिया की इस योजना की अंतरराष्ट्रीय रूप में तारीफ हो रही है और पहली बार हम दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में पाए जाते हैं। हर चौथा टीबी का मरीज भारत में पाया जाता है पूरी दुनिया में। सोचिए, 1 करोड़ नए टीबी के लोग पूरे भारत में होते हैं। अब 27 करोड़ भारत में रह गए, पहले 30 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ करते थे। पहली बार अभी जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 की आई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की तारीफ की है कि दुनिया में अकेला देश है जिसमें टीबी कम होने के पहली बार प्रमाण मिले हैं। टीबी के नए रोगी 16% कम हुए हैं, टीबी से होने वाली मृत्यु दर जो है वो 18% कम हुई है। ये है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की लीडरशिप, चाहे टीबी हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो, हेल्थ के और भी डिफरेंट चीजें हैं।
एक और चीज मैं बताऊंगा कि अभी और एक वैक्सीन आ रही है जो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का होता है, उसकी वैक्सीन आ रही है, और बहुत से वैक्सीन पर काम चल रहा है। बाकी और नई दवाओं पे काम चल रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। और ये सब हम कह सकते हैं कि भारत में अब स्वास्थ्य क्षेत्र वहां पहुंच गया है जहां कोरोना आए चाहे कोई दूसरा रोना आए, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो गई है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, आईसीयू की संख्या बढ़ रही है, पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जा रहा है। मैं एक चीज और टीबी की बात बता के आपको समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं इसको बहुत दिल से जुड़ा हूं। इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, टीबी की बहुत पुरानी। उसने इंडिया में कहा कि हम ऐसे सेंटर चुनना चाहते हैं जिनको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर करें। तो भारत सरकार ने प्रेजेंट किया कि भाई ये हमारे से अच्छे सेंटर हैं, आप आइए और चेक करिए क्या आप इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीबी के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पूनम जी, मैं आपको शेयर करते हुए खुशी हो रही है मुझे कि इंडिया में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चुने इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी ने। 2 दिल्ली में, 1 चेन्नई में, 1 मुंबई में, और 1 आपके बड़े भाई डॉक्टर सूर्यकांत जी का रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। 5 केंद्रों में एक हमारा भी केंद्र है जिसको अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज ने उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दी है कि आपका केंद्र भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर करने लायक है, और उसको 22 अक्टूबर 22 में डिक्लेयर किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत में चिकित्सा, मेडिकल शिक्षा, चाहे वो, और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, पहले एमसीआई हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें बड़ा करप्शन और दुनिया भर की शिकायतें थी, पुनर्गठित किया गया इसको, और अभी ये नेशनल मेडिकल कमीशन कार्यरत है जिसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जब तीसरी एनिवर्सरी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो एक कॉल आई थी, हमारी गवर्नर साहब ने कॉल दी थी कि मेडिकल के फील्ड में भी और दूसरे फील्ड में भी जो है वो हिंदी में किताबें लिखी जाएं। तो मैं आपको बताते हुए वो कर रहा हूं कि मेरी 21 किताबें हैं जिसमें 14 अंग्रेजी में, 7 हिंदी में हैं। और जब ये कॉल आई तो मैंने 2 किताबें, जो 100 किताबें अभी माननीय मोदी जी ने वर्चुअल लॉन्च की हैं 29 जुलाई 2023 को, उसमें से 2 किताबें मेरी भी हैं, मेरा छोटा सा 2% योगदान है। और उसमें एक टीबी पर मेरी किताब है और एक अस्थमा में योग की भूमिका, इस पे मेरी पुस्तक है। और ये 100 पुस्तकें जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड यूजीसी ने अंडरटेकिंग हम लोगों से ली है कि अभी हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है। और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 100 किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह विभिन्न क्षेत्रों में हैं। उसमें से 2 पुस्तकें मेरी भी हैं, और इस तरह का काम हो रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो शोध होना चाहिए, आप सोचिए कि पहले टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग आती थी, और उत्तर प्रदेश जैसा तो कोई नंबर ही नहीं आता था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रैंकिंग की, तो हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड में आया। हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 10 डॉक्टर्स का नाम आया, संजय गांधी पीजीआई से 13 डॉक्टर्स का नाम आया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस लिस्ट में डॉक्टर सूर्यकांत का भी नाम है, यानी टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिलीज बाई ग्लोबल रैंकिंग बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। तो ये सब चुनौतियां, ये सब लिमिटेशन होने के बावजूद भी हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम हेल्थ सेक्टर में भी हम बहुत बड़ी लीडरशिप दुनिया को दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। आप चिकित्सा क्षेत्र में आपके योगदान से सारे लोग परिचित हैं, और अगर कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स का नाम लेना हो भारत में तो उसमें प्रथम कुछ नामों में आपका नाम लिया जाता है। और ये इस प्रोग्राम का सौभाग्य है कि आपको सुनने का हम लोगों को अवसर मिला, और इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, और सक्षम लीडरशिप में ही सक्षम लोग उभर कर सामने आते हैं।
किस तरह से आपदा को अवसर में बदलने की कला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं, और ऐसे लोगों को पिक करना भी जानते हैं जो लोग उनके योजनाओं को, उनके संकल्पों को आगे लेकर बढ़ा सके, और उसमें आप अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने व्यस्त रहते हुए भी इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिली। बहुत धन्यवाद। पूनम जी का स्नेह है। मैं इस समय जयपुर में हूँ, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस है अस्थमा की, एलर्जी की। इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं जयपुर से ही लॉग इन कर लूंगा अपने कार्यक्रम में बीच में समय निकाल के, और इसका मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी प्रश्न आप लोगों के होते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर कार्यक्रम के अंत में दिया जाता है। आप लोग दो नंबर है जिस पर आप लोग अपने प्रश्न भेज सकते हैं। पहला नंबर है 9721158634, 9721158634। दूसरा नंबर है 999 इसका मतलब 99903808573। दोहरा रही हूं, 99903808573। इस नंबर पर आप लोग अपने प्रश्न भेज सकते हैं। सर अगर बने रहेंगे तो सर के पास प्रोफेसर सूर्यकांत जी से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनके पास मैं जरूर इनके लिए जो प्रश्न होंगे मैं उनके पास भिजवा दूंगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। और अब आगे बढ़ते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं डॉक्टर अपर्णा से अनुरोध करूंगी कि प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी से आपका परिचय कराएं। प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी। Professor Rana Pratap Singh Ji is currently a professor at the School of Life Sciences, JNU, and a renowned scientist working in the area of cancer prevention and treatment. As a leading scientist, Professor Rana Ji's work has been recognized internationally by the Indo-US Science and Technology Forum IUSSTF Award and the ICMR International Fellowship for Young Biomedical Scientists for the University of California, USA, as well as by Ayush, DST, DBT, CSIR, and ICSMR. Professor Ranaji's played a key role in the establishment of Central University of Gujarat, the Patanjali Research Institute at Haridwar, and the Special Center for Systems Medicine at JNU, and has also served as Pro Vice Chancellor of JNU. Sir, हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you, Aparna, for the introduction. आदरणीय पूनम जी और हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर सूर्यकांत जी, धीरज जी और न्यू इंडिया जंक्शन, मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज चर्चा का विषय है विकसित भारत और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी सूर्यकांत जी ने बहुत विस्तृत रूप से कोविड, ट्यूबरकुलोसिस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, नंबर ऑफ सीट्स हैं, हमारे MCI से जो NMC का कन्वर्जन हुआ है, बहुत सारे विषयों पे अपना विचार रखें। सिंस ये चर्चा हेल्थ से शुरू हो रही है, तो पहले कुछ हेल्थ के बारे में जो फंडामेंटल चीजें हैं उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और फिर उसके बाद जैसा सूर्यकांत जी ने बताया कि लास्ट 10 इयर्स में जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। और यदि हम कंपेयर करें उसके पिछले दशक से, तो सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज यदि कैलकुलेट करें आप मैथमेटिकली, तो आप पाएंगे बहुत सारे क्षेत्रों में। तो मैं इन फैक्ट्स को आपके सामने बाद में लाऊंगा, हमारे पास उसका भी कुछ डेटा है। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है,
ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी हम हेल्थ को सिर्फ फिजिकल हेल्थ समझ लेते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ की बात होती है तो उस इंडिकेटर में फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी जुड़ जाता है। और जब एक व्यक्ति होलिस्टिक तौर पे हेल्दी हो तो उसका योगदान सोसाइटी में हो या किसी भी क्षेत्र में हो या उसके किसी भी एक्सपर्टीज में हो, वो कंट्रीब्यूशन आपको मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ मिलता है। तो जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में वो समय आएगा, तो विकसित भारत में जब विकसित देश की बात की जाती है तो उसमें राज्य भी विकसित होना चाहिए। जब राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। राज्य तब विकसित होगा जब आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं एम्पावर्ड हो, वो विकसित हो। डिस्ट्रिक्ट तब होंगे जब आपकी कम्युनिटी एम्पावर्ड हो और वो विकसित हो। कम्युनिटी तब विकसित कहला पाएगी या एम्पावर्ड होगी जब उस कम्युनिटी में रहने वाले फैमिलीज जो हैं वो एम्पावर्ड हों। और जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में फिर वो आ जाता है इंडिविजुअल के ऊपर। तो यहाँ पे सेंटर में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हम जब व्यक्ति के हेल्थ की बात करेंगे तो आप ये रेफरेंस पाएंगे कि हेल्थ और वेल्थ का जो कनेक्शन है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विकसित देश की बात करते हैं, जहाँ वेल्दी कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यदि देश, सोसाइटी और उसके लोग हेल्दी हैं तो जो आउटपुट और कंट्रीब्यूशन होता है वो एट पार होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा इसके लिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 1947 में से 32 साल थी। यदि हम आज देखें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 2023 में करीब 70 साल हो गई है। तो 32 से 70, करीब 75 सालों के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये बढ़ता जाएगा। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी एक डेवलप्ड कंट्री का या डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। अभी आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 77 ईयर्स है। आप जापान में देखेंगे वहाँ पे 84 ईयर्स है। तो ये एक इंडिकेटर है जो कि डायरेक्टली हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हम यदि अपने कंट्री में हेल्थ को लेके यदि कुछ और जानना चाहें तो हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है वहाँ पे आपको मिलेगा राइट to life is a fundamental right and that is given in our constitution. तो राइट टू लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हेल्थ का भी इनडायरेक्टली एक लिंक आ जाता है। और कई सारे यदि केसेज आप देखेंगे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई विषयों पे जब इंटरप्रिटेशन दिया है अपना इस आर्टिकल का, आर्टिकल 21 का, स्पेशली राइट टू लाइफ का, तो उसमें इनडायरेक्टली वो राइट टू हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। और इस तरफ वो स्टेट का या कंट्री का भी ध्यान आकर्षित करता है कि क्या जिम्मेदारी है एक राज्य की या एक सरकार की, एक देश की, उसके देशवासियों के हेल्थ के लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हुए फिर हर देश या हर स्टेट अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे अपने नागरिकों का हेल्थ जो डिजायर्ड है उस तरह से वो मेंटेन कर सकें या अच्छे लेवल की सुविधाएं दे सके हेल्थ को लेके। तो इस मामले में जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में,
यदि उसको आप किसी भी पिछले डिकेड से कंपेयर करेंगे तो आपको एक जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और कुछ पॉलिसीज का मैं भी आपके सामने फैक्ट्स भी रखूंगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होगा विकसित भारत में, तो हमको ध्यान देना पड़ता है बहुत बेसिक और फंडामेंटल स्टेप से। एक इंडिविजुअल का हेल्थ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो राइट फ्रॉम कंसेप्शन, जब कंसेप्शन होता है उस टाइम भी मदर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्शन के बाद जब फीटल डेवलपमेंट होता है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस टाइम हम किस तरह से केयर कर रहे हैं मदर का और जो फीटस डेवलप हो रहा है उसका, इसके लिए भी बहुत बड़ा साइंस है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। फिर चाइल्ड का हेल्थ केयर, यंग का हेल्थ केयर, एडल्ट का हेल्थ केयर, एज्ड। तो हमारी जो लाइफ साइकिल है स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू द एज्ड इंडिविजुअल एंड इवन आफ्टर दैट इफ वी हैव ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव केयर, तो इन सब स्टेजेस को लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई गई हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। और आप देखेंगे कि उनका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो इन सब चीजों को डिलीवर करने के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर और फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर, फिर सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इस तरह से चेन है हमारे कंट्री में जिसके थ्रू ये सब पॉलिसीज का क्रियान्वयन होता है। और एक और मैं बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका जो लाभ है, हम दो चीजों की बात करते हैं, एक तो इक्विटेबल और दूसरा इक्वल। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो इक्विटेबल हेल्थ केयर की बात करती हैं, ना कि इक्वल। मैं बहुत संक्षिप्त में इसका अंतर बताना चाहूंगा यदि कुछ लोगों को इक्वल और इक्विटी में डिफरेंस ना पता हो तो। कि यदि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए हैं और दो लोगों की हेल्थ नीड है, एक गरीब परिवार है और दूसरा अमीर परिवार है। तो यदि हम 100 रुपए को 50-50 रुपए बांट देते हैं दोनों परिवारों में, तो इसको जनरली हम बोलते हैं कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन यदि हम नीड के हिसाब से, जो गरीब परिवार है उसको ज्यादा जरूरत है, यदि हम उसको 90 रुपए दे दें और जो अमीर परिवार है उसको हम 10 रुपए दे दें, तो उनसे भी उनका जो हेल्थ नीड है वो पूरा हो जाता है और इससे दोनों को जो डिजायर्ड सुविधा है हेल्थ के लिए वो मिल जाती है। तो अपने यहाँ जो कुछ प्रोग्राम्स आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, ये इसको ध्यान में रखते हुए आई हैं कि किस तरह से जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं अपने कंट्री में उनको हेल्थ की सुविधाएं गवर्नमेंट के थ्रू मिलती रहें। एक एक्सपेक्ट जो सूर्यकांत जी नहीं टच कर पाए वो है हमारा आयुष का सिस्टम। ये आयुष एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हेल्थ मैनेजमेंट और हेल्थ प्रिवेंशन में। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो 2014 में इसको एज ए मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मंत्रालय डिक्लेयर किया गया और कैबिनेट लेवल के मंत्री हैं जो कि पूरी उसकी पॉलिसीज और उनका जो भी क्रियान्वयन होता है वो देखते हैं। उसके पहले ये जस्ट एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। आयुष का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इनॉर्मस है हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर। आयुष सिस्टम को हम जनरली मानते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काफी उसका योगदान है। तो इससे क्या होता है कि जो मेन मेडिकल सिस्टम है
उस पर हमारा बर्डन कम हो जाता है। मान लीजिए यदि हम मोर देन 50% हेल्थ कंडीशंस को थ्रू प्रिवेंटिव मेथड्स यदि कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक्चुअल जो बर्डन है हॉस्पिटल्स पे जो एलोपैथिक केयर करते हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो हमारे देश में जो आयुष सिस्टम का कंट्रीब्यूशन, ये आप इस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ह्यूज है, इनॉर्मस। इवन जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन या प्रैक्टिसेज हैं गांव में, कस्बों में, लोगों के अंदर जो प्रचलित मेथड्स हैं उसके थ्रू बहुत सारे जो ऐसी डिजीज के सिम्टम्स, लक्षण या इनिशियल स्टेजेज होते हैं जो कंट्रोल कर लिए जाते हैं, जिससे कि उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। मैं आयुष मंत्रालय के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, तो उनकी जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौरान, वो बहुत सराहनीय है और बहुत ही एक्सेप्टेबल भी है इन द टर्म्स दैट कि कैसे हम आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एविडेंस के साथ लोगों के सामने रखें, नहीं ओनली अपनी कंट्री के लोगों के सामने बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके सामने भी। इसका एडवांटेज ये होगा कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेम वैसे ही जैसे कि योगा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। योगा का कंट्रीब्यूशन आप सबको मालूम ही है कि 177 देशों ने यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया और पास किया। तो 2015 में हुआ था और 21 जून को हम सब लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो योगा के महत्व को सभी लोगों ने पहचाना और सभी देशों ने लगभग उसको एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही पोटेंशियल आयुर्वेदा में भी है। आयुर्वेदा या पूरा आयुष सिस्टम जो मेडिसिन है उसमें हमारा यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब आ जाता है। तो गवर्नमेंट अभी जो इस एरिया में काम कर रही है उसमें आप देखेंगे कि इनके लिए कैसे हम साइंटिफिक एविडेंस जनरेट करें और जिस लैंग्वेज में आजकल के साइंटिस्ट या लोग समझते हैं हेल्थ को या डिजीज को, उस लैंग्वेज में समझाया जाए कि आयुर्वेदा कैसे काम करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं और डिजीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इस पे कई सारे प्रोजेक्ट्स मंत्रालय ने दिए हैं और उस पर रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। यदि हम एक रिजल्ट की बात करें तो उसमें सिंपल जो हमारा होता है वात, पित्त, कफ, जो हम सभी लोग जानते हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं। तो ये जो साइंस है प्रकृति का, ये बहुत ही डीप साइंस है और इसको समझना भी आम आदमी के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यदि हम ये किसी से पूछें कि आप किसी की प्रकृति बता सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते, उस साइंस के बारे में। मॉडर्न साइंस में क्या होता है कि यदि आपका ब्लड टेस्ट कर लिया, आपके ब्लड प्रोफाइल आ गया, उससे देख के आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि ये डिजीज होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जो वात, पित्त, कफ है, जिनको इसकी जानकारी है, जो वैद्य होते हैं, वो भी इन चीजों के बेसिस पे वो पूरी डायग्नोसिस कर देते हैं। लेकिन अब ये विद्या वो सबके पास नहीं है। तो इसको हम कैसे मॉडर्न साइंस में लाएं ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। इसमें भी काम चल रहा है काफी, और काफी कंट्रीब्यूशन है जो शायद कुछ दिनों में पब्लिकेशन के फॉर्म में भी आ जाएगा, और एक ऐप भी डेवलप कर लिया गया है इसके लिए। साथ में जो हमारा रिसर्च है, हमने ये देखा है कि जो आयुर्वेद साइंस में चीजें बताई गई हैं वो इवन जो मॉडर्न साइंस कहता है उसके भी बियॉन्ड है। लेकिन ये है कि अभी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो टूल्स और टेक्नोलॉजी हैं मॉडर्न साइंस के लिए, उसको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स की जरूरत है ताकि हम उसको समझ पाए। क्योंकि यदि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया ब्लड प्रोफाइल का टेस्ट, यदि हम ब्लड प्रोफाइल लेके ये बता देते हैं कि यदि आपका शुगर लेवल 140 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, 140 के नीचे हैं तो आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रेंज होता है जिसमें कि आप उस पर्सन को डिफरेंट स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो आयुर्वेदा कर सकता है,
और जो आपका मॉडर्न मेडिसिन है उसे एक कट ऑफ बता देता है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में चीजें बड़ी सिस्टमेटिक है, सब कुछ अचानक नहीं होता है, वो चीजें धीरे धीरे चेंज होती हैं। ये है कि हमको पता नहीं चलता है शुरू में, जब डिजीज हो जाती है तब हमको पता चलता है। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच, कि जब आपको डिजीज हो गई आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब हम एक दूसरे अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच में आता है प्रिवेंशन और अवेयरनेस, जहाँ पे आपका आयुर्वेदा सिस्टम है या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इस पे गवर्नमेंट काफी इंफोसिस दे रही है कि कैसे इस सिस्टम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका लाभ मिले। आपने देखा होगा कि काफी सारे नए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जहाँ पे कि आयुर्वेदा की पढ़ाई भी हो और आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च भी हो। और इसी क्रम में आपको ये भी पता होगा कि जेएनयू में भी एक हम लोगों ने आयुर्वेद बायोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और उसके बाद पीएचडी भी उसमें होना था। उसका उद्देश्य यही था कि हम कुछ ऐसे साइंटिस्ट को ट्रेन करें, रिसर्च करें कि जो दोनों फील्ड को जाने, आयुर्वेदा को भी और मॉडर्न साइंस को, ताकि वो इन सब चीजों को बेहतर सबके सामने ला सकें। एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं कैंसर के ऊपर रिसर्च करता हूं, तो आजकल जब हम क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं, जिसमें कैंसर, अल्जाइमर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ये सब आ जाती हैं। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है या हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये हो सकता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थी उनका जो इंसिडेंस है, अवेंडेंस है, वो कम होता जाएगा, और जो एक क्रोनिक डिजीजेज हैं इनका बर्डन बढ़ता जाएगा। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि लाइफ स्टाइल और खासकर हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, ये किस तरह से हम अपने दिनचर्या में लाएं, इस पे भी एम्फेसिस देना जरूरी है। आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से हो या किसी और खेल के माध्यम से हो, और सबका अल्टीमेट गोल यही था कि कैसे आप हेल्दी रहें और फिट रहें। और ये मैंने शुरू में बताया कि हेल्दी और फिट होना है कितना परसेंट आपकी इफिशियंसी और एफिकेसी को बढ़ा देता है आपके आउटपुट में। तो जैसे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जन औषधि प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके थ्रू जो आजकल लाभार्थी हैं उनको जो सुविधा मिल रही है, वो कुछ सालों पहले सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि ऐसी कोई पॉलिसी या सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी। तो यदि हम आयुष सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो गवर्नमेंट का डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि करीब करीब 18 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जो आयुष केयर का कंसल्टेशन है वो प्राप्त किया है। एक और विषय पे हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। आजकल हेल्थ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हेल्थ और टेक्नोलॉजी, एक सिंपल मैं यदि आपको एग्जांपल दूं, तो सूर्यकांत जी कोविड की बात कर रहे थे, आप सबको याद होगा एक ऐप आया था कोविन, बहुत सिंपल ऐप था, लेकिन सिस्टम को और प्रोसेस को इतना इजी कर दिया था कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी कि कहीं भी जाकर वैक्सीनेशन कराना हो। सिंपल सा फॉर्म, सिंपल सा इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का रोल है आजकल वो हेल्थ में बढ़ता जा रहा है। और दो ही रीजन है कि किस तरह से हेल्थ केयर को एट ए ईज और कम टाइम में आपको मुहैया कराया जाए। और इस पे गवर्नमेंट का काफी एम्फेसिस है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक बायरेक सिस्टम होता है,
बायरेक्ट सिस्टम की जो फंडिंग है ज़्यादातर वो इसी के ऊपर फोकस है कि कैसे आप अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल मेडिसिन आप डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ऐसे ही डीएसटी में भी एक विंग है जो टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग करता है, और उसको भी काफ़ी साइंटिस्टों ने यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की हैं। तो डीएसटी, डीबीटी, इवन आईसीएमआर है, सीएसआईआर है, सब गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं। और जितने भी नए प्रोग्राम्स आए हैं आपको अधिकतर मिल जाएंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजिकली भी कैसे एडवांस करना है और सबके लिए उसको इजीली अवेलेबल कराना है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में मेडिकल कॉलेज की जो बात की थी सूर्यकांत जी ने कि अभी हमारे पास 23 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं जो एक से शुरू हुए थे। तो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। अभी जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है अभी 157 नर्सिंग कॉलेजेस हो गए हैं हमारे पास, और ये सब बढ़ोतरी पिछले 10 सालों की है। आयुष्मान भारत में जो जन औषधि योजना है उससे भी जो काफ़ी बचत हुई है, करीब 75,000 करोड़ की सेविंग हुई है। तो ये जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है उसको किस तरह से गवर्नमेंट जो नीडी लोग हैं वहां तक पहुंचा रही है, ये भी एक एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है। और इसका एक एग्जांपल और भी आप देखेंगे कि हम मेडिसिन के फील्ड में अभी एज ए एक्सपोर्टर कहलाते हैं। मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया। बहुत सारे मेडिसिन जो ऐसी हैं, खासकर मैक्सिमम जेनेरिक मेडिसिन तो ऐसी हैं, ज़्यादातर सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं जो कि जितनी कंपनियां हैं आर&डी या जो फार्मा की, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ताकि वो बाकी भी जो नीडी कंट्रीज हैं उनको अफोर्डेबल रेट पे मेडिसिन को प्रोवाइड करा सकें। ओवरऑल यदि हम कंक्लूड करें इसको, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सेंटेंस है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वी हैव पुट फॉरवर्ड ए विजन बिफोर द वर्ल्ड, वन अर्थ वन हेल्थ। और ये बहुत ही बखूबी से दर्शाता है इसको कि हम किस तरह से नहीं बल्कि अपना साथ में औरों का भी ध्यान रखते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है हर फील्ड में, तो हेल्थ के फील्ड में भी जो वैक्सीन मैत्री अभी बात हो रही थी उसका एक अभी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल था। एंड दिस इन्वॉल्व्स होलिस्टिक हेल्थ केयर फॉर ऑल क्रिएचर्स। तो जब हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स। तो दैट इज द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि होलिस्टिक हेल्थ केयर में सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ बस मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, और हम सबको प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल मैं इसके लिए दूंगा, लंग कैंसर। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत रिसेंट डेटा है, लंग कैंसर के केसेस वहाँ पे बढ़ते जा रहे थे। इस तरह से जो ग्राफ देखेंगे ईयर वाइज तो ऐसे बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब से वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम आया, खासकर यदि कुछ लोग जो हमारे एज के होंगे तो उनको ये पता होगा कि 40-50 साल पहले रोड्स के किनारे आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स दिखा करते थे जिसपे कि जो फिल्म एक्टर्स या इस तरह के जो पर्सनालिटीज होती थी वो स्मोकिंग के साथ दिखाया जाता था, तो सिगरेट का प्रचार होता था। लेकिन आपको अब वो नहीं दिखता। इवन टीवी में भी कोई फिल्म देख रहे हो, यदि स्मोकिंग का सीन आता है तो आपके लिए वार्निंग आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस और सो एंड सो। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही हुआ है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी रिसर्च से, वैसे वैसे पॉलिसीज आई और रूल बने, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो ये जो प्रिवेंशन और अवेयरनेस है, इसके वजह से बहुत सारे जो डिजीज का इंसिडेंस है वो कम होता गया है। जैसे कि मैंने आपको लंग कैंसर का एग्जांपल दिया, 96-97 के बाद लंग कैंसर के केसेस यूएस में भी कम होना शुरू हो गए, अपने यहाँ भी कम हो रहे हैं। तो अभी यहाँ देखेंगे अपने यहाँ जो टोबैको कंजम्पशन का ज़्यादा फॉर्म जो है वो ओरल के फॉर्म में है,
गुटखा या टोबैको लोग कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से यदि हम ओवरऑल कैंसर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अपने कंट्री में हेड एंड नेक कैंसर जो है सबसे ज्यादा है। तो प्रिवेंशन इसके लिए एक कारगर उपाय हो सकता है, जिसको कि हमको नॉट ओनली फॉर कैंसर बट ईच एंड एवरी डिजीजेस, if we focus on this, I think we can reduce the burden of the disease management on our country as well as our family. So इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ हमारी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू पूनम जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचपन से ही हम लोग एक ईडीएम के रूप में उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन उसका ध्यान भी रखें तो वाकई बहुत अच्छा हो। और आप कैंसर के विश्व के जाने माने शोध वैज्ञानिकों में आपका नाम है। आपने उस तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। और जेएनयू में आज से 3-4 साल 5 साल पहले आयुर्वेद का सेंटर खुला था, और उसमें सर की महती भूमिका थी उस सेंटर को एस्टैब्लिश करने में। उसके क्या क्या आयाम होंगे, उसकी क्या रूपरेखा होगी, रात दिन एक करके सर ने अपनी टीम के साथ उसे जेएनयू में एस्टैब्लिश किया था। हम लोग उसे कैसे भूल सकते हैं। निश्चय ही आने वाले वर्षों में जेएनयू को और जेएनयू के माध्यम से अन्य लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा इस सेंटर से। और आपके जो रिसर्चेज हैं वो न केवल अंग्रेजी दवाओं बल्कि आयुर्वेद की दवाओं में, भारतीय जो परंपरा रही है दवाओं की, उसमें आपका बहुत ज्यादा काम है। और हम लोगों को सुनने का अवसर मिला। विकसित भारत एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी बातें बताई। बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों को समय दिया। बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते ये भी बता दूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से आप सभी लोग परिचित हैं, जो 15 नवंबर को शुरू हुआ था और अब 26 जनवरी के आसपास इसका समापन होने वाला है। और इसका उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाए। उन योजनाओं का लाभ, जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो वो लाभ किस तरह से ले सकते हैं, इसके लिए सारी मशीनरी, सारे लोग लगे हुए हैं। और एक बहुत ही सुंदर प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक घोषणा है कि विकसित भारत के एम्बेसडर बनने का। विकसित भारत का एम्बेसडर कोई भी बन सकता है। नमो ऐप पर जाकर उसको आप डाउनलोड कीजिए। अपने विजन्स को, अपनी आपके जो विजन्स हैं जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने में सहायता मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं। और अंत में कुछ चुनिंदा लोगों को प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसके विजन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिससे बहुत ज्यादा लाभ मिल सकेगा वैसे विजन वाले लोगों को। तो आप सभी से अनुरोध है, इसमें बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए हैं, कि आप लोग नमो ऐप पर जाकर विकसित भारत का एम्बेसडर बनने के लिए डाउनलोड कीजिए। और 2000 हम सबका ये संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें हमें अपनी भूमिकाओं को लेकर बहुत ही सजग सतर्क रहना है, अपने संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है, और अपनी हर किसी की भूमिका इसमें तय हो रही है और तय होगी। तो इसी के साथ मैं अपर्णा से अनुरोध करती हूँ कि धीरज सिंह से हमारा परिचय कराए। और धीरज सिंह, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इस तरह से रखा है कि 2 एमिनेंट प्रोमिनेंट स्पीकर होंगे, जो योजनाओं के बारे में, उस क्षेत्र के, उस विषय से संबंधित योजना और जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएंगे। और एक उन योजनाओं से जिसको डायरेक्ट लाभ मिला है, उसकी बातें हम लोग, व्यवहारिक धरातल पर क्या लाभ मिला है, उससे क्या अंतर आया है समाज में, वो भी सुनने का हम लोगों ने रखा है। और इसी के तहत धीरज सिंह से परिचय कराएं। Mr. Dheeraj Kumar Singh is currently working as a research scholar of Hindi literature at Banaras Hindu University.
He completed his graduation from the University of Allahabad and his post-graduation from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. धीरज जी, हम आपका स्वागत करते हैं। इस आभासी परिचर्चा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम तथा समकक्षों एवं कनिष्ठों को सादर नमस्कार। रामचरितमानस के उत्तरकांड में महाकवि तुलसीदास लिखते हैं कि गुरु बिनु भव नदी तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। और इसीलिए विकसित भारत की ओर कार्यक्रम श्रृंखला की चौथी कड़ी में मुझे बतौर वक्ता आमंत्रित करने के लिए मैं अपनी गुरु आदरणीय प्रोफेसर पूनम मैम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक लोकप्रिय शांति मंत्र उद्धृत है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। और रोग मुक्त होने का यह अभिप्राय हमारे स्वस्थ होने में ही निहित है। आज संबंधित विषय स्वास्थ्य योजनाएं और विकसित भारत के संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार और अनुभव आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं। यदि मुझसे कोई चूक होती है तो आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वास्थ्य पर अपने वक्तव्य के दरमियान मेरा बेसिक अप्रोच इस बात पर केंद्रित तो रहेगा ही कि किन किन लोगों को या मेरे परिजनों को या मुझे उससे लाभ हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कमियां रही और वर्तमान सरकार ने इसे कैसे टैकल किया है, यह भी संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर के साथ साथ अनेक बुनियादी चीजें जुड़ी होती हैं। भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जोर सदैव इस बात पे रहा है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट बने, जिसमें सरकार वंचित आम जनों तक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और जब मैं उसकी पूर्ति के संदर्भ में पुराने सरकारों के आंकड़े देख रहा था तो मुझे दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति सहज याद आई कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। बहरहाल मेरा वक्तव्य संक्षेप में 5 मुख्य बुनियादी तत्वों पर केंद्रित है। पहला हेल्थ बजट, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, और इसी हेल्थ एक्सेसिबिलिटी में मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को लाभ हुआ है, सरकार की पहुंच उन तक बनी है। चौथा प्रिवेंटिव केयर, जिसकी चर्चा प्रोफेसर और विद्वान वक्ता ने अभी किया, और पांचवा बहुत संक्षेप में मेडिकल टूरिज्म। सबसे पहले बात स्वास्थ्य बजट की करें तो यह एक सत्य है कि भारत का स्वास्थ्य बजट बहुत उत्साहजनक सदैव से नहीं रहा है। और इसका जो मूल कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए चलाई जा रही हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले का आंकड़ा है जब मल्टीपल डायमेंशनल इंडेक्स जो पॉवर्टी का बना है, उसमें भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में गंभीर प्रयासों से अपने तमाम योजनाओं के द्वारा लगभग 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि ऐतिहासिक है। खैर, स्वास्थ्य के बजट पे हम वापस लौटें तो इस सरकार में वर्तमान में एक आशा की किरण बड़ी दिखाई देती है जब वह स्वास्थ्य के बजट को लगभग 1.5 GDP से बढ़ाकर 1.5% से बढ़ाकर 2.5 करने जा रही है, जिसमें 33,000 करोड़ के मुकाबले अब स्वास्थ्य बजट 86,000 करोड़ रुपया 2023 में किया गया है। यह वृद्धि पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर पर भी असर डालती है, जिसमें लगभग 82% की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर मैं बात करूं आज से 5-6 साल पहले की तो 1108 रुपया प्रति व्यक्ति पर खर्च था, तो आज वो बढ़ के 2014 रुपया हो गया है। अब उद्देश्य यह है कि प्राप्त बजट का उपयोग कितना प्रभावी है और जमीनी धरातल पर उसकी क्या पहुंच है, क्योंकि हमने देखा है कि इसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही लोग तक पहुंच पाते हैं। और आज आपने देखा है डीबीटी के माध्यम से, जैसा कि विद्वान वक्ता और डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा कैसे पैसा लोगों के खाते में सीधे पहुंच रहा है। दूसरे बुनियादी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका ध्यान मैं जब खींचूं तो आपको विदित हो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली देश के सरकारों के पास, जब भारत की बात कर रहा हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी रही है, जिससे पाटने का काम लगातार यह सरकार कर रही है। उदाहरण के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आपको जानकर आश्चर्य होगा मुझसे पहले पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि किस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। 2014 तक नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज इस देश में 66 वर्षों में 387 थे और 2014 से 2023 के बीच महज 9 सालों में 273 नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन चुके हैं। इस तरह एमबीबीएस सीटों में भी
लगभग 97% की बढ़ोतरी की गई है और जो 51,000 से बढ़कर लगभग 1 लाख के ऊपर हुई है। पीजी सीटों में भी इसी तरह 110% की वृद्धि हुई है। एम्स के संदर्भ में आपको बताया गया है कि पहले भारत में आजादी के बाद से 2014 तक महज 7 एम्स थे और वर्तमान में एम्स 23 हैं, जिसमें 15 एम्स वर्किंग हैं और 8 एम्स या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं। इसके अलावा देश के हर जिले में, ताकि व्यक्ति को बहुत इलाज के लिए बहुत दूर दूर न भटकना पड़े, राज्य सरकारों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित करने का केंद्र की योजना है, जिसमें 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। और खास बात यह है कि इसके प्रथम चरण में 40 आकांक्षी जनपदों को शामिल किया गया है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हैं। मेरे पास बताने के लिए इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, डाटा है, पर मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हेल्थ एक्सेसिबिलिटी अर्थात लोगों तक पहुंच उसकी कितनी बन पा रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो यह सर्वविदित है कि इस मुल्क की एक बड़ी आबादी सदैव अस्पताल और उसमें मौजूद महंगे इलाजों से घबराती रही है। गरीब या मजदूर या तो गंभीर बीमारी में कर्ज तले दब जाता रहा है या वो दम तोड़ देता रहा है। यह इस देश में होता आया है, पर आज आयुष्मान जैसी प्रभावकारी योजना उसका साहस और संबल बनी है। संयोग से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और आपको विदित होगा कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल इसी कैंपस में मौजूद है और इसीलिए ऐसे कई मौकों का मैं स्वयं साक्षी रहा हूं जहां मेरे स्वजन और परिजनों ने आयुष्मान और ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ उठाया है। अपने एक मित्र का वाकया साझा 2-3 साल पहले का करना चाहूंगा। वो सब सुंदरलाल अस्पताल से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर काशी से अवश्य जुड़ा है और यह काशी का सौभाग्य है कि उसका संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और उसमें भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। सन 2018 में उन प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव से टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल होमी जहांगीर भाभा के नाम से बनारस में बना। उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया। इससे पहले पूर्वांचल के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए बंबई जाना पड़ता था, LLT बंबई, और भटकना पड़ता था। मेरे मित्र को जब कैंसर जैसी विभीषिका ने जकड़ लिया तो हम लोगों ने न केवल उस अस्पताल में भर्ती कराया, बल्कि बहुत सस्ता और सुलभ इलाज उससे दिलवाया और उसको सीधा इसका लाभ हुआ। और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, जो गरीब जिसका घर द्वार सब कुछ बिक जाता है, वो कल्पना नहीं कर सकता, उसका इलाज उससे संभव हो सका। ये तो 2-3 साल पहले की बात है। अभी महीने भर पहले की मैं एक बात कहूं, मेरे जनपद का एक अत्यंत सामान्य परिवार से आने वाला लड़का गौतम यादव, रजिस्टर्ड भी होगा आयुष्मान पर, उसको हृदय रोग हुआ और प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसका हार्ट का एक वाल्व जो है वो खराब हो चुका है और उसको सर्जरी की बहुत जरूरत थी। उसके माता पिता, जैसा कि सामान्यतः होता है, रोने पीटने लगे। गरीब लोग थे और उन्हें कुछ संभव नहीं दिख रहा था, लेकिन आयुष्मान का कार्ड उनके पास मौजूद था। मेरे पास फोन आया था, मैं गया और आयुष्मान लेकर मैं संबंधित डॉक्टर के पास गया और वहां से 2,72,000 के करीब एस्टिमेट जो है वो पास हुआ और उसका फ्री जांच, फ्री मैं जब कह रहा हूं कि फ्री जांच, फ्री दवाएं और फ्री सर्जरी टूल्स, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ फ्री में हुआ और अभी 3 दिन पहले स्वस्थ होकर वो लड़का अपने घर लौटा है। और कितनी बड़ी बात है, जब मैं अस्पताल जाता था वार्ड्स में तो केवल वो एकमात्र उदाहरण नहीं था, ऐसे बहुतेरे लोग मिलते थे जिनका इलाज रुका पड़ा था आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, गंभीर बीमारी को लेकर पड़े हुए थे। पर आयुष्मान जब से आया तो उन्होंने सर्जरी का या फिर ऑपरेशन का साहस दिखाया और सरकार की योजना का लाभ उन्हें मिला और वो इलाज करा पाए। ये तो ऐसी बातें हैं जो मैंने बहुत करीब से देखी। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान सरकार ने आम जनों तक टीकाकरण की पहुंच कैसे बनाई, यह पूरे विश्व ने देखा और अब डॉक्टर सूर्यकांत सर ने इसके बारे में आपको बताया भी। भारत ने इस दौर में अपनी आत्मनिर्भरता का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश किया जब उसने खुद की कोविड वैक्सीन तो इजाद किया ही और लगभग 220 करोड़ की वैक्सीन डोज से 1.25 अरब से अधिक आबादी को, भारतीय आबादी को सुरक्षित किया। बात चाहे मास्क की हो, वेंटिलेटर की हो, पीपीई किट की हो या ऑक्सीजन प्लांट की हो, भारत ने संकट के समय अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और कर्ण की भांति, जैसा कि सर ने बताया, कि लगभग 100 करोड़ विदेशी नागरिकों को, 100 करोड़ वैक्सीन डोज विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध कराया। तीसरी और सबसे जरूरी अनुभव की चीज जो मेरे घर की है वो मेरी माँ है, जो स्वयं स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हैं। घर में मैंने बहुत करीब से बच्चा केंद्रित सरकारी योजनाओं का
लाभ उठाते महिला लाभार्थियों को देखा है। आपको जानकारी देता चलूं कि सरकार द्वारा जच्चा बच्चा की देखभाल तभी शुरू हो जाती है जब पेट में बच्चे की, किसी माँ के पेट में बच्चे की नींव पड़ती है। उदाहरण के लिए गर्भधारण पंजीकृत हो जाने के बाद महिला को हर महीने की 9 तारीख को उसकी जांच जो है उसके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर होती है, और जांच के दौरान यदि किसी आयरन की कमी है, उसमें किसी ब्लड की कमी है, तो उसको इसका इलाज या उसकी दवाई फ्री ऑफ कास्ट मुहैया कराई जाती है। उसी 9 तारीख को उसे फलाहार पोषण योजना के तहत फलाहार भी दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पे अलग से प्रोटीन युक्त दाल, दलिया और तेल दिया जाता है ताकि उसके पोषण में किसी प्रकार की पोषण में उसके बच्चे में किसी प्रकार की कमी ना रहे। इसके अलावा प्रसव के दौरान सरकार कितना गंभीर है कि अर्थ से भी कमजोर न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऐसे कम से कम 200 महिलाएं होंगी जिसको मेरी मां ने गर्भावस्था के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फलस्वरूप 5,000 रुपए की मदद दिलवाई है, सरकारी मदद, और बिना किसी घूस, बिना किसी प्रक्रिया की, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपके खाते में होता है। उसके अलावा प्रसव के तुरंत वो एक महिला को तुरंत मिलता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है। जब मेरे घर की बात है तो मैं बता रहा हूँ जो उनको मिला है एक फॉर्म भर देने से मात्र, और वो पैसा जो है 7 दिनों के अंदर उनके खाते में ये पैसे आ जाते हैं। इसमें आशाओं को भी, जो मेहनत करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उनको भी सरकार प्रोत्साहन राशि देती है कई प्रकार की, और वो भी अपना घर इससे चला पाती हैं। बात यही नहीं रुकती कि प्रसव हो गया, इसके बाद बच्चा और माँ दोनों का ख्याल इसके बाद सरकार मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जैसे अभियानों के तहत रखती है, जब वह 7 चक्रीय सुरक्षा टीका बच्चों को देती है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और उसकी मां स्वस्थ रहे। अभी मिशन इंद्रधनुष के नवीनतम आंकड़े में देखकर आपको बताऊं तो लगभग 4 करोड़ 45 लाख बच्चों एवं 1 करोड़ 20 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है। और यही कारण है कि 2014 से 2019 के बीच जो उपलब्ध आंकड़े मेरे पास है, वहां मातृ मृत्यु दर में 25% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर में भी लगभग 28% की कमी आई है, और ये मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों के चलते संभव हो सका है। अब चौथे बुनियादी तत्व प्रिवेंटिव केयर की बात अभी पूर्व में वक्ता प्रोफेसर राणा सर ने की है, जिसकी मूल संवेदना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात एहतियात इलाज से बेहतर है। और इस एहतियात का मूल हमारे लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, स्वच्छता, नींद इत्यादि से जुड़ा हुआ है। खान पान के संदर्भ में एक लोक कवि घाघ हैं, जिनकी पंक्ति मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा, जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग आज भी उसको गांव में दोहराते हैं कि चैत गुड़ बैसाखे तेल, जेठ महुआ आषाढ़े बेर, सावन दुदुआ भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक मही। आशय यह है कि चैत में गुड़, बैसाख में तेल, भादो में दही, कुंवार में करेला और कार्तिक में मट्ठा खाने से परहेज करना चाहिए। और वास्तविक इसका एक अपना वैज्ञानिक कारण है, जो आप ढूंढेंगे तो अवश्य पाएंगे। आज भारत सरकार फिट इंडिया और ईट राइट इंडिया जैसे अभियान चला रही है। देखिए, जो बुजुर्ग कह रहे थे, फिट इंडिया और ईट इंडिया राइट के तहत हमारे पारंपरिक श्री अन्न मोटे अनाज को लगातार वैश्विक मंचों पर प्रमोट कर रही है। फाइबर युक्त मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते वर्ष 2023 को भारत सरकार की रिकमेंडेशन पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। इसी प्रकार योग और उसके महत्व को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत ने आत्मसात किया है, उससे आप बखूबी परिचित हैं। प्रिवेंटिव केयर के अंतर्गत आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ जैसी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था पर बल दे रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुष का जिसकी चर्चा 2014 से पहले भारत में बहुत नहीं थी, वर्तमान बाजार लगभग 24 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो चुका है, जो 2014-15 के मुकाबले 535% अधिक है। ध्यान दीजिए, 535%। भारत आज आयुर्वेद और हर्बल दवाओं का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। और खास बात यह है कि इसके द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा हम अर्जित करते हैं। जैसा कि सर ने बताया भी कि आयुष्मान ने इसके द्वारा आयुष में, माफ करिए, मेन हेल्थ सेक्टर जो है उसके प्रेशर को बहुत हद तक रिड्यूस भी किया है। अंत में मेडिकल टूरिज्म के संदर्भ में मैं कहूंगा कि भारत के पास इसकी भी बहुत संभावनाएं बरकरार हैं। भारत के पास इसका भी बाजार है। बहुत सारे
विदेशी अपना इलाज कराने, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भारत में अब आ रहे हैं। 2021 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार $5.63 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म बाजार भारत में मौजूद है और एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत का बाजार यह $35 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कार्यक्रम की संयोजिका और अपनी गुरु प्रोफेसर पूनम मैम का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। इसके अलावा मैं न्यू जंक्शन प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी पूरी टीम को यह मंच दिया ताकि हम भारत सरकार की योजनाओं को लोगों के समक्ष रख सकें और उन्हें प्रचारित प्रसारित कर सकें, उनसे उनको जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धीरज। कई योजनाएं भारत सरकार की हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने देखा है कि पहले ये धारणा थी लोगों के मन में रहा करती थी कि अरे योजनाएं हैं, नीतियां हैं, लेकिन लाभ कहाँ मिल पाता है। घिसते रहो, बैंक के चक्कर लगाते रहो, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहो, कुछ होता तो है नहीं। लेकिन अब ये धारणा बिल्कुल ही बदल चुकी है। जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो जाकर किसी भी हॉस्पिटल में अपनी इच्छा से इलाज करा सकता है और त्वरित गति से इलाज मिलता है। ये सारी बातें तुमने बहुत अच्छे ढंग से बताई और बहुत ही उसमें बीच बीच में साहित्य का जो तुमने दोहे वगैरह बताए वो उससे एक बहुत ज्यादा रुचि बनी रही सुनने में। बहुत धन्यवाद धीरज। कुछ प्रश्न हम लोगों के पास आए हैं। प्रोफेसर सूर्यकांत जी हमारे बीच हैं, इसलिए सबसे पहले उनसे ही मैं प्रश्न जो उनके लिए प्रश्न आए हैं वो पूछ लेती हूँ। उनके लिए, सर के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है संक्षेप बर्नवाल जी का है, जो कहते हैं कि पूछते हैं कि अस्थमा के बारे में सूर्यकांत सर बता रहे थे कि भारत में अस्थमा के मरीज बहुत अधिक हैं। इसके लिए प्रिकॉशन क्या क्या लिए जाएं ताकि इस समस्या से बचा जा सके। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इसका उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। देखिए, अस्थमा एक आनुवंशिक बीमारी है और इसका मैं एक पब्लिक डोमेन में बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं कि अगर आप किसी भी पेड़ की पत्ती को छुइए, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा। अगर आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसी तरह जो हमारा अस्थमा का रोगी है उसकी सांस की नलियां वातावरण में जब एलर्जी के तत्व मौजूद होते हैं और उनके संपर्क में आती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, और सांस की नलियां जब सिकुड़ जाती हैं तो सांस फूल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पैदाइशी रूप से जिनकी सांस की नलियां अति संवेदनशील हैं उनको अस्थमा हो जाता है। यही वातावरण है, हमारी सांस की नलियां यानी सामान्य लोगों की सांस नहीं फूलती है, उनकी सांस की नलियां नहीं सिकुड़ती हैं, लेकिन जो पैदाइशी रूप से वो रोगी जिन्हें हम अस्थमा के रोगी कहते हैं, जिनकी सांस की नलियां हाइपर सेंसिटिव हैं, वो सिकुड़ जाती हैं जिससे उनकी सांस फूल जाती है। तो इसके प्रिकॉशन के लिए धूल, धुआं, गर्दा यानी कि जो हमारा वातावरण का प्रदूषण है उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। हमें डॉक्टर की सलाह से जो इनहेलर चिकित्सा है वो नियमित रूप से लेनी पड़ेगी। करीब 3.5 करोड़ लोग इस देश में अस्थमा के रोगी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 36% इनहेलर लेते हैं डॉक्टर की सलाह से, बाकी लोग नहीं लेते हैं। तो मेरा आग्रह है कि इनहेलर चिकित्सा ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। हाँ, ये जरूर है उसके साथ आप योग प्राणायाम करेंगे तो इनहेलर के साथ साथ आपको और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, लेकिन प्राणायाम इनहेलर का विकल्प नहीं है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं, मैं थोड़ा असहमति जताता हूं, कि वो केवल योग प्राणायाम से अस्थमा को ठीक कर देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। दूसरा, आप घर के अंदर ऐसा वातावरण रखें जो स्वच्छ वातावरण हो। घर के अंदर पेट एनिमल्स रखेंगे, घर के अंदर परफ्यूम है या किसी तरह की और इत्र है या जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो घर के अंदर अगर अस्थमा का रोगी है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। होली, दिवाली और त्योहार पे जब हम घर की सफाई करते हैं तो विशेष ध्यान रखें, इस धूल, धुआं, गर्दा से भी अस्थमा के रोगी को नुकसान हो सकता है। बच्चे हैं, टेडी बियर के साथ सोते हैं, तो जिन बच्चों को अस्थमा है, अगर उस घर में टेडी बियर होंगे या उस तरह के फर वाले खिलौने होंगे तो बहुत नुकसान उनको पहुंच सकता है, अस्थमा का अटैक हो सकता है। धूम्रपान ना करें, अगर धूम्रपान करेंगे तो वो धुआं भी नुकसान करेगा।
इसी तरह जो माताएं बहनें अस्थमा से पीड़ित हैं, अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना, मैं बताना भूल गया कि उज्ज्वला योजना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी महिलाओं के स्वास्थ्य में लाई है। इस देश में प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं कि हम डॉक्टरों की, उन्होंने खास तौर पे हमारे जैसे सांस के स्पेशलिस्ट की बड़ी समस्या हल कर दी। अब महिलाएं जो हैं वो बहुत ही उस पे एलपीजी गैस पे चूल्हे पे खाना बना रही हैं। अभी 10वीं करोड़ लाभार्थी को अयोध्या में उन्होंने घर गए थे प्रधानमंत्री जी उनके घर। तो अब 10 करोड़ महिलाओं को वो जो लकड़ी के चूल्हे पे फूंक फूंक के उनके फेफड़ों में धुआं भरता रहता था, वो नहीं भरता है। इस योजना ने क्रांतिकारी बदलाव लाया है सांस के स्वास्थ्य में महिलाओं के। मुझे लगता और कोई पता नहीं बोल पाया कि नहीं। अच्छा हुआ इस प्रश्न के माध्यम से पूछने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये चीज भी इसमें छूट गई थी तो वो रह गई। तो स्वच्छ भारत भी एक बहुत बड़ा है, इसने भी काम किया है। तो इस तरह से अगर हम ये बचाव करेंगे, और साथ में फिर मैं दोहराता हूं कि योग प्राणायाम साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी अस्थमा के रोगियों को, लेकिन ये इनहेलर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे ही एक प्रश्न और है। दो लोगों ने एक ही जी तरह के प्रश्न पूछे हैं। एक तो जी यतेंद्र है जो जेएनयू से है, और एक जी कौशल है जो डीयू से है। दोनों का लगभग एक ही प्रश्न है। मैं दोनों प्रश्नों को मिला दे रही हूँ। इन जी। लोगों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2.5% बजट का हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, जबकि भारत में ये अभी नहीं हो रहा है। तो अनुमानतः 2.5% हम अपने बजट का कब खर्च करने लगेंगे हेल्थ सेक्टर पर? अब ये आंसर पूनम बहन और हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन धीरज भैया ने अभी बड़ा अच्छा बताया है इस बच्चे ने कि भाई हम धीरे धीरे बजट को बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई देश की सुरक्षा भी जरूरी है, तो रक्षा बजट भी बढ़ाना जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। बजट तो सबका बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है और एब्सोल्युटली बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बजट बढ़ा के स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना एक चीज है, और दूसरी बात जो कैपिंग, सबसे बड़ी पॉलिसी जो मैं मानता हूं वो कैपिंग जो की गई है कि भाई आम आदमी तक जो बड़ी बड़ी प्रोसीजर्स थी, बड़े बड़ी चीजें थी, वो आम आदमी की पहुंच में आ गई, रीच में आ गई। अब एंजियोप्लास्टी में इतना खर्चा आता था, वो बहुत कम हो गया, 1/4 रह गया। नी रिप्लेसमेंट में या और जो अवयव लगते हैं, प्रोसेसेस लगते हैं, उनका खर्चा बहुत हो गया। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई, डायबिटीज की दवाएं सस्ती हो गई। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वो जिनकी दवाएं सस्ती की जा रही हैं बार बार। तो ये हमको लगता है कि बजट बढ़ाना तो एक बात सही है ही। हमको लगता है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर से लेके और स्वास्थ्य मंत्री जी को सबको मेल करते रहिए, और इस फोरम के निष्कर्ष में भी पूनम जी लाएंगी। हम लोग तो भाई छोटी सामर्थ्य के लोग हैं, जहां तक बात पहुंचा सकते हैं पूनम जी ज्यादा ऊपर पहुंचा सकती हैं, पहुंचाएंगी बात को, धीरे धीरे बजट बढ़ेगा। सर नेतृत्व से काफी चीजें निर्धारित होती हैं। अभी तक हम 2.1 तक आए हैं, तो जी 2.5 मेरे हिसाब से दूर नहीं है, और वो भी जरूर होगा। जी बहुत धन्यवाद सर। राणा जी से दो प्रश्न है। एक प्रश्न आदित्य चतुर्वेदी ने किया है, जो डीयू में रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने कहा कि आप कैंसर जैसी डरावनी बीमारी के विशेषज्ञ हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया बताएं। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले तो उसके कारण को जानना जरूरी है कि कैंसर होता कैसे है। यदि ये हम सबको पता चल जाए कि कैंसर होने के क्या क्या कारण है, तो उनसे बचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं संक्षिप्त में ये बता पाऊंगा कि जो 3 मेन कारण होते हैं कैंसर के, एक हम बोलते हैं कार्सिनोजन। तो जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनके एक्सपोजर से कैसे बचा जाए। दूसरा होता है फिजिकल, और तीसरा बायोलॉजिकल होता है, जो कि उतना ज्यादा मेजर शायद रोल ना हो उनका। फिजिकल में आता है रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या एक्सरे गामा रे। और बायोलॉजिकल्स में आते हैं जो वायरसेज होते हैं कुछ, जिनसे भी कैंसर हो सकता है। तो आजकल जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या पोल्यूशन किसी और रूप में कहीं है जो फूड चेन के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है, तो उन पॉल्यूटेंट्स को जो खासकर कार्सिनोजेनिक हैं, उनसे हम कैसे बचें, ये एक
प्रिवेंशन का भी एक्सपेक्ट है और कैंसर को भी कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसे अभी मैं बोल ही रहा था कि लंग कैंसर होता है, तो लंग कैंसर के यदि केसेस देखेंगे हॉस्पिटल में, तो आप पाएंगे कि जो 85% लंग कैंसर के पेशेंट हैं करीब करीब, वो स्मोकर्स हैं। तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। अब इसका प्रिवेंशन तो बहुत सिंपल है, यदि स्मोकिंग नहीं करें तो लंग कैंसर शायद ना हो, चांसेस बहुत कम होंगे। उसी तरह से जैसे मैंने ओरल कैंसर की बात की, टोबैको कंजम्पशन जो ओरली होता है उससे क्लोजली एसोसिएटेड है। तो जो भी इस तरह के कारक हैं उनसे दूर रहें, किस तरह से अपने आप को बचाएं, ये पहला। और दूसरा जो होता है कि हम अपने हेल्थ को कैसे इतना स्ट्रांग रखें कि यदि एक थ्रेशोल्ड लेवल से कम एक्सपोजर है कार्सिनोजेनिक चीज़ों का, तो उसका प्रभाव ना पड़े। तो उसमें हमको अपने हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करके रखना है। खासकर उसमें एक इम्यून सिस्टम है हमारे अंदर, जो सबको मालूम है। इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग रहेगी उतना ही आपको प्रिवेंशन मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि हम कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यदि एक एज हो जाती है जैसे 40+ या 45+, तो यूजुअली प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग होता है। तो प्रिवेंटिव चेकअप यदि कराते रहें तो कैंसर यदि अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव है। लेट स्टेज में पता चलने पे उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रिवेंटिव चेकअप भी एक अच्छा उपाय है जिससे कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। पूनम जी। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि हम लोग उस एज को क्रॉस कर चुके हैं जहां प्रिवेंटिव चेकअप करवाते रहना चाहिए, लेकिन शोधार्थी अपने खान पान और अपने एक्सरसाइज, रेगुलर नियमित व्यायाम पर ध्यान दें तो काफी चीजें स्वास्थ्य की ठीक रहेंगी। सर, एक दूसरा प्रश्न आपसे ही है और शिवानी सक्सेना ने ये प्रश्न पूछा है कि आप आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों के विशेषज्ञ हैं। आपकी नजर में आयुर्वेद ज्यादा अच्छा है या एलोपैथिक ज्यादा अच्छा है? इसका मैं उत्तर देना ऐसे चाहूंगा कि दोनों ही अच्छा है और दोनों का कॉम्बिनेशन और ज्यादा अच्छा होगा। आप किसी एक पे मत जाएं, दोनों की जरूरतें हैं। हो सकता हो कि अलग अलग कंटेक्स्ट में आपको किसी एक की जरूरत पड़ जाए, कहीं किसी दूसरे की जरूरत पड़ जाए, कहीं दोनों की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए हम किसी एक को ऐसे नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। दोनों ही अच्छा है और जरूरत के हिसाब से हमको दोनों का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है हेल्थ को लेके, तो उसमें खासकर एक एक्सेसिबिलिटी की बात होती है। आपके लिए क्या इजीली एक्सेसिबल है जिससे अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं, तो आपको प्रायोरिटी में लाएं। और अभी हम लोग 90 वर्ष से यही बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ही है जो सबसे एक्सेसिबल है। उसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना होता है ज़्यादातर। ट्रीटमेंट में तो बहुत खर्च करना पड़ जाता है, लेकिन आप इसको किस तरह से आप अपने दिनचर्या में ला सकते हैं वो एक बहुत बड़ा आपका अपना डिसीजन होगा। एक अंतिम प्रश्न धीरज के लिए है। 2-3 प्रश्न है धीरज से, जिसको मिलाकर मैं एक प्रश्न बना दे रही हूँ। सारा प्रश्न जो है वो समय को लेकर ही है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में, आयुष्मान का लाभ लेने में कितना समय लग जाता है। ये प्रश्न पूछा है सौरभ हखौरी जी ने मुंबई से। नमस्ते सौरभ जी। कितना समय लग जाता है, अपने अनुभव के आधार पे कहूँ तो वर्तमान में तो बहुत ही कम। एक सामान्य कागजी प्रक्रिया है। आयुष्मान का एक काउंटर सारे बड़े अस्पतालों में, छोटे अस्पतालों में सरकार ने बनवाया है। 28,000 अस्पतालों को इसके थ्रू पैनल बद्ध किया है। जन औषधि केंद्र बनवाया है जो कि आयुष्मान से अटैच है, वहां दवाएं भी मिलती है। प्रक्रिया की जहां तक अब बात कह रहे हैं, अभी मैंने पिछला केस बताया, महज 3 से चौथे दिन, मतलब हम गए, हमने उसका जांच करवाया, उसमें निकल के आया कि हार्ट का वाल्व खराब है, सर्जरी होनी है। तो महज 72 घंटे के अंदर एस्टिमेट बना, वो लड़का भर्ती हुआ, उसका पैसा आ गया 24 घंटे के अंदर, या उससे कम कम में ही। मुझे लगता है शाम को गए, अगले दिन हम लोग पूछने गए थे लगभग दोपहर 12 या 1-2 बजे तक, तो उसका
पैसा सरकार की ओर से रिलीज कर दिया गया था 2,72,000 के करीब। तो पैसा तुरंत आ जाता है, उसी पैसे पे जांच भी होती है उसी अस्पताल में, उसी पैसे पर उसको दवाएं भी मिलती हैं और सर्जिकल टूल वगैरह भी जो संभव हो पाता है, जो उसके अंतर्गत आते हैं, वो सारी चीज मिलते हैं। बहुत मिनिमम या नहीं के बराबर, मुझे लग रहा है कि नहीं के बराबर खर्च होता है। अब एक्सटर्नल कोई खर्च आपका अपना लगे वो अलग विषय है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर्ती मरीज को पूरी तरह से सुविधा है और तत्काल प्रभाव से सारी चीजें प्राप्त होती हैं। 72 घंटे के अंदर मेरे हिसाब से सर्जरी से लेकर सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट का पैसा वगैरह सब कुछ। बहुत बढ़िया। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतनी त्वरित गति से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद धीरज। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचने वाले हैं, धन्यवाद ज्ञापन की ओर। इसके पहले मैं बता दूं कि कई गण्यमान्य प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी हैं, आपका बहुत आभार, आपने इतना समय दिया इस कार्यक्रम को। आयुषी केतकर जेएनयू से, अनुष्का नागपाल डीयू से, गीतांजलि जेएनयू से, हेमचंद जी झारखंड बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, डॉक्टर शिवानी झा डीयू से, डॉक्टर स्वाति गुप्ता, काफी फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, बीएचयू से कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबों के जुड़ने से, सुनने से, आने से ही कार्यक्रम सफल हो पाता है। आप सबका आभार। अब मैं कुलदीप उपाध्याय से अनुरोध करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी को पूरा करें। सभी को नमस्ते। विकसित भारत की ओर ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम की चौथी कड़ी में आज हमारा विषय रहा स्वास्थ्य योजनाएं और विकसित भारत। प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बीच एक सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। वो प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे। सर अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच मौजूद हुए। सर के प्रति हम सभी श्रोताओं की तरफ से सर का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सर का व्याख्यान बहुत बेहतरीन रहा। मेडिकल जैसे टर्म, जो मेडिकल कॉलेज में जो टर्म पढ़ाए जाते हैं, या मेडिकल या चिकित्सा संबंधी जो भी जटिल से जटिल टर्म होते हैं, वो आज एक समस्या है कि मेडिकल पर कोई भी विषय या कोई भी वक्ता अगर हिंदी में कुछ भी बात रखता है तो उसको बहुत कठिनाई महसूस होती है। जटिल विषय है, हिंदी में अभी भी पारिभाषिक शब्दावलियों का अभाव है। इसके बावजूद डॉक्टर सूर्यकांत जी ने अपना पूरा व्याख्यान हिंदी में प्रस्तुत किया। इसके लिए विशेष रूप से डॉक्टर सूर्यकांत जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत जी अपने व्याख्यान में शुरू से ही इस विषय पर उन्होंने सभी श्रोताओं को ये ध्यान दिलाया कि कैसे जो विगत 10 वर्षों में जो सरकार की योजनाएं रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं की जो प्रोन्नति संबंधी योजनाएं हैं, वो जमीनी स्तर पर या मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिक्षा के स्तर पर, शोध के स्तर पर, या मरीजों को उपचार देखभाल के स्तर पर कितनी कारगर साबित हुई हैं, और भविष्य में ये योजनाएं किस रूप में सरकार द्वारा नीति निर्णयन की जा रही हैं, इस विषय पर बहुत ही बेहतरीन रूप से डॉक्टर सूर्यकांत जी अपने वक्तव्य को हम सभी के बीच रखे। डॉक्टर सूर्यकांत जी ने दिखाया कि कैसे कोविड-19 के उस नेस्तनाबूद दौर में की बड़ी सी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं जब चकनाचूर हो रही थी, भारत एक बड़ी आबादी को संरक्षित रखते हुए कोविड-19 से निपटता है और विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। WHO उसकी तारीफ भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2020 में कोविड-19 से भारत का सामना होता है, उस समय भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर होता है। फिर भी भारत का शीर्ष नेतृत्व त्वरित गति से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोन्नत दिशा में बढ़ाता है, और भारत के जितने भी डॉक्टर होते हैं वो अथक परिश्रम से इस बीमारी से निपटते हैं, और न सिर्फ निपटते हैं वरन तत्कालीन रूप से, त्वरित रूप से वैक्सीन निर्माण में भी प्रवृत्त होते हैं। जब भारत के पड़ोसी मुल्क भारत पर उपहास कर रहे थे कि क्या भारत कभी वैक्सीन बना पाएगा, उस समय भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में N95 मास्क प्रोड्यूसर बनता है, उत्पादक बनता है। सर इस बात को रेखांकित करते हुए अपने व्याख्यान में बोले डॉक्टर सूर्यकांत जी कि भारत पहला देश बनता है जो DNA वैक्सीन
खुद से बनाता है, और ये आत्मनिर्भरता की पहचान ही है कि इंफ्रा नोजल वैक्सीन भी भारत बनाता है। साथ ही साथ न सिर्फ वो अपने लोगों के संरक्षण के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन का प्रयोग करता है, बल्कि उस दौर में 100 करोड़ वैक्सीन वो दान में देता है, जिससे पड़ोसी मुल्क के साथ साथ कुछ विकसित देश भी इस वैक्सीन से लाभान्वित होते हैं। सर, जैसा कि सभी को ये विदित है कि सर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चिकित्सक है, तो उत्तर प्रदेश के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे सर अपनी बात रखते हुए सर ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2017 तक महज 16 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हर जिले में एक डायलिसिस मशीन आज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। सर ने अपने पूरे व्याख्यान में दिखाया कि कैसे भारत जो लाइलाज बीमारी थी उससे निपट रहा है। आज भारत उस लाइलाज बीमारी से मुक्त होने के कगार पर है। जैसे सर एक अपने पूरी परिचर्चा में टीबी पर भी बात रखी कि टीबी से भारत आज मुक्त होने के दौर में है। कुछ वर्षों में भारत पूर्णतः टीबी मुक्त हो जाएगा। 13 मार्च 2018 को WHO के मंच से भारत का शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये ऐलान करते हैं कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा। आज भारत उस दिशा में है। टीबी की बात करें कि टीबी मरीजों के लिए आज जांच फ्री है, इलाज फ्री है, और इसके साथ ही 500 रुपए पर मंथ, मतलब प्रत्येक महीने 500 रुपए मरीजों को भत्ता दिया जा रहा है कि वो अपना उपचार करें। इसके साथ ही साथ सर से जब ये प्रश्न किया गया, सर से एक प्रश्न भी आया, और सर से प्रश्न जब पूछा जा रहा था तो मैं थोड़ा अनौपचारिक होके मैं इस विषय पर बात रखना चाहूंगा कि सर विभागाध्यक्ष हैं, और सर से मिलने के लिए, उपचार के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, प्राइवेट क्लिनिक पर जाना पड़ेगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से कोई मित्र ये भी प्रश्न पूछे कि अस्थमा का उपचार कैसे करें, तो ये मंच की खूबसूरती है कि यहाँ अगर कोई अस्थमा का रोगी भी रहा होगा तो उसको मुफ्त इलाज, मुफ्त उपचार मिल गया। इस हेतु मैं सर को और इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय प्रोफेसर पूनम कुमारी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच के माध्यम से एकेडमिक जगत में तो जो जितने भी शोधार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उससे भारतीय जनता लाभान्वित हो रही है। उसके साथ ही साथ इस विषय पर, हेल्थ जैसे विषय पर, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक को बुलाना अपने आप में एक बेहतरीन कार्य है। इस पहल के लिए आदरणीय प्रोफेसर पूनम कुमारी सिंह जी के प्रति हार्दिक आभार। हमारे इस आज के परिचर्चा के दूसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और जेएनयू के वरिष्ठ प्रोफेसर, जिन्होंने जेएनयू में आयुर्विज्ञान